NCERT book Number Systems, so of class 9. So number systems is consist of irrational and rational numbers. इसमें irrational numbers भी होते हैं और rational numbers भी होते हैं. irrational numbers के बारे में आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे. और rational numbers आपने क्लास 7 and 8 में you must have studied, तो वो आपको पता होगा, बट स्टिल मैं फिर भी बता देती हूँ. सो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप P by Q फॉर्म में लिखते हो, बट वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज ओके. नाउ इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स के अंडर में आते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और फ्रैक्शंस जो आपका जिसमें अपॉन के फॉर्म में हो और जिसमें कि फ्रैक्शन जो है जो इट इज शुड बी लेस देन 1. ओके. अच्छा, इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर्स के अंडर में क्या आते हैं? होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. ओके. सो आज हम एनसीईआरटी की बुक का स्टार्ट करते हैं, एंड फिर बीच में मैं आपको जब एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी उसी के बीच में मैं आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी. सो विल डू फर्स्ट द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेइंग आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और false. Now the first statement is every whole number is a natural number. Is it? See, you have read, see, every whole number starts from 0 to infinity and natural number starts from 1 to infinity. So this is from 0 to infinity and this is from 1 to infinity. So that means every whole number cannot be a natural number because 0 is a whole number which is not a natural number. So first answer is false. First question is answer is false. Now the second question, every integer is a rational number. Is it saying every integer को आप C से denote करते हो, every integer. Now the second part is it is saying every integer is a rational number. Integer को आप C से आप represent करते हो, तो every integer is it a rational number? Rational number. Every integer is a rational number. Is it saying? See, this is integer and this is rational number. See, rational number के अंडर में आता है ना integers, so that means every integer is a rational number. So that's true. Okay? Every integer is a rational number. Now, every rational number is an integer. Is it asking every rational number? Now, the third part is every rational number is an integer. No, every rational cannot be integer. See, it could be a fraction. Okay, every rational number cannot be a integer. It is no. It could be a fraction. It could be anything. Okay. Now, find 5 rational numbers between 1 and 2. Now, the example 2 is find 5 rational number between 1 and 2. ठीक है, इसके बीच में हमें rational numbers निकालने हैं, 5 rational numbers. इसके बहुत सारे methods हैं. See, easiest method ये है कि आप 1 को और 2 को किन्हीं दो numbers से multiply करो, numerator को और denominator को, and उनके बीच में निकाल लो. See, अगर आपने 10 से multiply किया, ठीक है, so this gives you 10 upon 10 and this gives you 20 upon 10. इनके बीच में 9 rational numbers आ जाएंगे. So that is 11 upon 10, 12 upon 10, 13 upon 10, 14 upon 10, 15 upon 10, 16 upon 10, 17 upon 10, 18 upon 10, okay, 19 upon 10. Okay. Now, example 2 is also done. Now, let's start the exercise. Now, the first question is 0 a rational number? आप बताओ, क्या 0 एक rational number है? आप 0 को 0/1 में लिख सकते हो? Yes. So, 0 is a, yes, it is a rational number. Okay. Find 6 rational numbers between 3 and 4. Second question है, find 6 rational numbers between 3 and 4. अब इसके बहुत सारे methods हैं.
फर्स्ट मेथड है, इसको बहुत ही इजी है, सो दैट इज इंटू 10 अपॉन 10, 4 इंटू 10 अपॉन 10। आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये हो गया 30 अपॉन 10 और ये हो गया 40 अपॉन 10। इन दोनों के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ गए? 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10। आप इसको आप बाद में वो भी कर सकते हो सिंप्लीफाई। 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10, 37 अपॉन 10, 38 अपॉन 10 एंड 39 अपॉन 10। इतने सारे आ गए आपके ये रैशनल नंबर्स जो इन दोनों के बीच में है, 3 एंड 4 के बीच में। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप इंटू 100 कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज सो इजी। थर्ड क्वेश्चन अब मैं कराती हूँ, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, अब इसको क्या करो, इसको या तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर से 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 5 15, 4 5 20। चलो 10 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 30 अपॉन 50 और यहाँ पे हो गया 40 अपॉन 50। सो ये हो गया 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50 एंड सो ऑन टिल 39 अपॉन 50 तक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन और फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सी, नेचुरल नंबर जो होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है, और होल नंबर क्या होता है 0 से लेके इंफिनिटी तक होता है। तो वो पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? यस, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी है ना, एवरी नेचुरल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नो। इंटीजर, एवरी इंटीजर? नो, इट इज नॉट अ होल नंबर। ओके, बिकॉज आप देखो -3 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, +3 इज अ होल नंबर। ओके, सिमिलरली -4, कोई भी माइनस चीज होगी वो होल नंबर नहीं है, तो उसका कहना था एवरी कैन नॉट बी, सम इंटीजर्स कैन बी, सम नॉट। ठीक है, सो एवरी तो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? नो। एवरी रैशनल नंबर नो इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? p/q फॉर्म में, और ये क्या होता है? ये होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है? जैसे 3/7, 4/3, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। ओके, बट ये तो रैशनल नंबर नहीं है, होल नंबर। सो एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी अ होल नंबर। ओके।